Let us continue the lesson number 7, the necklace, page number 42. Continuation of the lesson, page number 42. Loisel already have half dressed, asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. I have no longer have Madame Forestier's necklace. लुइसल ने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने जवाब दिया कि फॉरेस्टियर का नेकलेस दिखाई नहीं दे रहे। ही रोज इन डिस्मे, वो डिस्ट्रेस से खड़े हो गए। व्हाट, हाउ इज इट दैट? It is not possible. And they looked in the folds of dress, in the fold of the cloak. Cloak means overgarment कहते, वैसे तो कपड़े कहते, इधर का मीनिंग overgarments. In the pockets everywhere, they could not find it. He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" फिर उसने पूछा, तुम्हें बिल्कुल याद है क्या कि मिनिस्टर के घर से निकला तब वो तुम्हारे पास थे? Yes, I felt it as we came out. हाँ बिल्कुल, जैसे हम निकला था ना वहाँ से, तब तो था ही। But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. अगर स्ट्रीट में कहीं गिरा हुआ था, आवाज़ तो सुन ले। इट मस्ट बी इन द कैब, इसका मतलब ये कैब में गिरा। यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये तो हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, तूने उस गाड़ी का नंबर नोट किया? नो। एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? नो। आपने देखा? नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। कास्ट डाउन मीन्स थके हुए भी और निराश भी। फाइनली लोइसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ होगी, तो वो कपड़े चेंज कर ही रहे थे लेकिन वो वापस पहन लिया। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट डाउन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। देखो हम जहाँ से आए पैदल निकले, वो सारे जगह में मैं ढूंढने जा रहा हूँ, ये कहकर एंड ही वेंट, वो चला गया। She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. वो जो कपड़े पहन रही थी उसी कपड़े में बैठी रही, कहीं जाने का मन नहीं किया। Towards 7 o'clock, her husband returned. 7 बजे करीब उसके पति वापस आए। He had found nothing, कहीं भी नहीं मिला। He went to the police station and to the cab officers and put an advertisement in the newspapers offering a reward. पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, कैब ऑफिसर्स में नोटिस दिया, अखबार में ऐड दिया, जो भी उसको पाया जाए तो उसको कोई रिवार्ड देंगे, इनाम देंगे। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. इस मुसीबत की वजह से डर मार के वो पूरा दिन बिता दिए। Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. शाम तक वो वापस आए ढूंढ के, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। He said, "Write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired." तो ऐसा कर और तुम्हारे दोस्त को लेटर लिखो कि नेकलेस का क्लास्प, उसका जो कुंदा, उसका जो हुक वो टूट गया, उसको सही करा के लाओ। दैट विल गिव अस टाइम, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। शी रोट as he dictated, जिसे पति ने बोल के दिया और पत्नी लिखती रही। एट द एंड ऑफ द वीक They had lost all hope
and Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." सप्ताह के अंत में पति ने बोला, हम ऐसा करेंगे, हम उसके लिए नया नेकलेस खरीद के दे देंगे. In a shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamonds. Chaplet means string and a dora, which seemed to them exactly like the one they had lost. कई शॉप में तलाश की, एक शॉप में उस नेकलेस जैसे एक नेकलेस दिखाई दिया जो खो गया था. It was valued at 40,000 francs. उसका कीमत करीब 40,000 francs. They could get it for 36,000. अगर बारगेन करें तो 36 में मिल जाए. Loisel possessed 18,000 francs, which his father had left him. लोइसल के पास थोड़ा बहुत रखा था, 18,000. He borrowed the rest. बाकी उसने उधार लिया. He made ruinous promises. Ruinous means causing ruins. Took money from usurers and the whole race of lenders. Usurers means money lenders. पैसा उधार देने वाले से भी लिया और छोटे मोटे जो लेंडर्स थे उससे भी लिया. Then he went to get the new necklace. जब पूरा पैसा हो गया तो नेकलेस लेने चला गया. Depositing on the merchant's counter 36,000 francs. 36,000 francs वो अपना काउंटर पे रखा. When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone. उसके बाद वो फॉरेस्टियर को देने लगे. तब उसने बोला, in a frigid tone, rude tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." अरे तो इतना लेट क्यों करा, मुझे इसका ज़रूरत पड़ा था. मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स as मैडम लुइसल feared she would. उसने सोचा फॉरेस्टियर उसको खोल के देखेगी, लेकिन उसने खोला ही नहीं. उसने सोचा खोल के अगर थोड़ा बहुत फर्क दिखाई दिया तो उसको समझ में आ जाए. What would she think if she should perceive the substitution? क्या होगा अगर उसको पहचान में आ गया कि वो कोई ओरिजिनल नहीं है. What should she say? वो क्या कहेगी? Would she take her for a robber? क्या उसने मुझे चोर नहीं समझे. मैडम लोइसल now knew the horrible life of necessity. चलो काम तो हो गया, अब तो सोचने लगी कि ज़िंदगी का महत्व क्या है. She did her part, however completely, heroically. कोई बात नहीं, जो करना था ब्रेवली उसने पूरा किया. क्या करना था? उधार लिया हुआ नेकलेस वापस देना था, वो दे ही दिया. It was necessary to pay this frightful debt. लेकिन जिससे उधार लिया उसको वापस देना ही देना है, उसके लिए कुछ करना है. She would pay it. They sent away the maid. Maid है ना, फीमेल नौकरानी. They changed their lodging. वो जहाँ रहते थे वो मकान चेंज कर दिया. They rented some rooms in an attic. वहाँ से वो खाली करके एक ऐसा रूम ले लिया जो छत पे अलग बनाया हुआ कमरा. She leaned the odious work of the kitchen. वो किचन के गंदे गंदे काम करने लगे. She washed the dishes, बर्तन धोए. She washed the soiled linen, कपड़े धोए. Their clothes and dish clothes, खुद के कपड़े बर्तन धोने के. And which she hung on the line to dry.
और उसके बाद तार में डाला. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. रिफ्यूज यानी कचरा. रोज़ रोज़ कचरा बाहर फेंकने गए और वहाँ से पानी भर के आए, रास्ते में रुके. एंड क्लोथ लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल. वुमेन ऑफ द पीपल मीन्स कॉमन मैन, और साधारण औरत के जैसे कपड़े पहन के निकले. शी वेंट टू द ग्रोसर्स. वो परचूनी वाले के पास गया. द बुचर्स, कसाई के पास गया. एंड द फ्रूटियर्स, फ्रूट बेचने वाले के पास गया. विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग, हैगलिंग टू द लास्ट सव ऑफ हर मिसरेबल मनी. और हैगलिंग मीन्स बारगेन करना. हर जगह में जाके बारगेन करके. सौ मीन्स फ्रेंच कोइन को कहते हैं. वैसे 100 एक सिक्के अपन बोलते हैं ना, एक सिक्का इकट्ठा किया. तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके वो पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दी. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 500 a पेज. उसके पति भी एक्स्ट्रा टाइम काम करने लग गया. अब पूछ सकता है उसके पति और वो खुद किस तरीक़ा से पैसे इकट्ठा किया. मेन क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकता है, तो पैराग्राफ नोट कर लेना. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, शाम को एक्स्ट्रा काम किया. पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, किसी दुकान में जाकर किताब जमाने का. एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 500 a पेज. अगर किसी का पेज को नकल उतारना है तो नकल उतार के पैसा कमाते थे. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years. इस तरह से काम करते करते बड़े आराम से, मुश्किल से 10 साल निकल गया. एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रीस्टोर्ड ऑल. 10 साल के अंदर अंदर आखिरी में सब कुछ कमा लिया. मैडम लोइसल सीम्ड ओल्ड नाउ. अब 10 साल में ये बूढ़ी होगी. शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन. वो बिल्कुल काम करता करता एक स्ट्रॉन्ग लेडी बन गई. एंड द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड. और वैसे क्रूड का इधर मतलब कच्चा औरत ऑफ पुअर हाउस होल्ड, एक साधारण हम कहते हैं हाउस वाइफ बन गई. एंड हर हेयर बैडली ड्रेस्ड. वो बाल भी सही से बनाते नहीं थे. एंड हर स्कर्ट सावरी. उसके कपड़े अनटाइडी, गंदी होगी. हर हैंड्स रेड. काम करते करते का हाथ लाल हो गए. शी स्पोक इन ए लाउड टोन. काम करने वाली के जैसे जोर जोर से चिल्ला के बोलती थी. एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर. पेल यानी बकेट. बड़े बड़े बकेट में पानी भर के वो कमरा धोया, पोछा करा लगाता कर. बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस शी वुड seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. लेकिन कभी कभी वो पति ऑफिस में चले जाते तो इसको थोड़ा टाइम मिला तो बैठ के उस बॉल का दिन के बारे में सोचा करती थी. जो लोग उसको तारीफ करते थे. फ्लैटर मीन्स इधर का मतलब तारीफ करना. दूसरा चापलूसी करना भी मीनिंग होता है, और यहाँ का मतलब तारीफ करना. और उस बॉल में लोग कैसे उसको तारीफ करते थे और कैसा हुआ करता था, कैसे नाचा करता था, कौन कौन आते थे, क्या क्या पूछते थे, ये सारी बातें उसे याद आने लगी. एंड हाउ कुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस. वो ये भी सोचने लगी, अगर वो नेकलेस नहीं खोया होता तो क्या होती इसका ज़िंदगी, उसके बारे में भी वो सोचने लगी. वन संडे आज शी वॉज
taking a walk in the Champs-Elysees to rid herself of the cares of the week. She suddenly perceived a woman walking with a child. एक दिन संडे को वो काम पूरा करने के बाद थोड़ा घूमने निकला चैम्प्स-एलिसीज में. टू रिड का मतलब टू रिलीव. द केयर्स ऑफ द वीक, सप्ताह का पूरा टेंशन दूर करके वो थोड़ा घूमने निकली. तब शी सडनली परसीव्ड ए वुमन. परसीव्ड इधर का मतलब सा, देखा. ए वुमन वॉकिंग विद ए चाइल्ड, एक औरत को उसके साथ एक बच्चे भी थे. एंड इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर. और कोई नहीं थी, वो मैडम फॉरेस्टियर थी जिससे ये नेकलेस उधार लिए थी. स्टिल यंग, वो अभी भी जवान दिखती है. स्टिल प्रेटी, अभी भी सुंदर है. स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी आकर्षित है. मैडम लुइसल वॉज अफेक्टेड. अफेक्टेड इधर का मतलब उदास हुए. उसको देख के ही उदास हुआ. क्यों? क्योंकि वो जवान रहेगी, ये बूढ़ी हो गई. अगर उसका नेकलेस अगर खोया नहीं होता तो ये भी ऐसे जवान रहती, इसलिए उदास हुई. शुड शी स्पीक टू हर, बात करूँ क्या उससे? यस सर्टनली, करूँगी, क्यों नहीं करूँ. एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब तो उसने पूरा उधार भी चुका दिया, उसको नेकलेस भी वापस दे दिया. शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट. अब जाकर मैं सच्चाई तो बोल ही दूँ. शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जीन. वो प्यार से उसको ऐसे बोलते थे. वो जाके उसको नमस्ते किया. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वाज एस्टोनिश्ड टू बी सो familiarly addressed by this common personage. Personage means name. वो उसको पहचाना नहीं. अब क्वेश्चन आ सकते क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि उसका हाव भाव, चेहरा, सब कुछ बदल गया. उसका शरीर कड़क हो गई थी. वो सॉफ्टनेस उसके शरीर में देखने को नहीं मिला, तो इसलिए वो. लेकिन वो मेरा नाम तो ले रही है, क्योंकि इस नाम से मुझे और कोई नहीं पुकारते. जीनी नाम से मुझे कभी कोई पुकारते नहीं. इसका मतलब ये कोई बिल्कुल जान पहचान है, लेकिन चेहरा देखने से पता नहीं पड़ा. शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन. लेकिन मैडम आप और कोई, मैं पहचाना नहीं आप. नो, आई एम मैटिल्डा लोइसल. अरे क्या बात कर रही हो, मैं तुम्हारा लोइसल है. खैर याद है तुमसे नेकलेस लेने आई थी ना उधर, वही है. एंड हर फ्रेंड अटेड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट. ये सुनते ही वो आश्चर्य होकर चिल्लाने लगी. ओ माई पुअर मैटिल्डा, हाउ शुड यू चेंज्ड, हाउ शुड यू हैव चेंज. ऐसा कैसा बदलो, ऐसा कैसे हो गया? यस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू. अरे क्या बताऊँ, तुम्हें याद है ना जब मैंने तुमसे लास्ट मिला था, तब से लेकर मैं थोड़ा चेंज हो गई. एंड सम मिसरेबल वंस, मेरे जीवन में कुछ दुख की बात आई थी. एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुई. बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट? मेरी वजह से कैसे? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल. तुम्हें याद है मिनिस्टर्स का पार्टी में जाने के लिए मैं तुमसे नेकलेस लोन करके ले गया था, लेंड करके लिए उधार में ले गया था. रिकॉल दैट. रिकॉल मीन्स रिमेंबर. याद है क्या? यस वेरी वेल. हाँ बिल्कुल याद है. वेल आई लॉस्ट इट. अरे क्या बताओ, वो पार्टी में वो खो गया था. हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट? हे बावली जी के जैसे बातें कर रहे, तूने वापस ला के दिया ना. आई रिटर्न अनदर टू यू एक्जैक्टली लाइक दैट. नहीं यार, वो तो वो नहीं है, उसका जैसा दूसरा है. एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट. उसका उधार चुकाने के लिए मुझे 10 साल लगा. यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग. तुम्हें पता है ना, हम वैसे गरीब है. इतना कॉस्टली चीज़ खरीदने के लिए हम कितना प्रयास किया होगा. बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट. अब हमारा उधार चुक गया और इसलिए डिसेंटली कंटेंट. डिसेंटली में अत्यधिक, कंटेंट है ना संतुष्ट. अब हम बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल. मैडम फॉरेस्ट स्टॉप्ड शॉर्ट. शी सेड,
यू से दैट यू बॉट एन डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। क्या बात कर रही है? तूने उसको वापस खरीद के देने में डायमंड नेकलेस चुन के लाया? यस। यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट लाइक, तूने अभी तक उसको देखा ही नहीं, बिल्कुल एज इट इज लग रहे। एंड शी स्माइल्ड विथ अ प्राउड एंड सिंपल जॉय। वो खुशी से मुस्कुराते हुए बोला। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड and took both her hands as she replied। जैसे वो बोलने लगी तो उसका दोनों हाथ अपने हाथों में लेके कहने लगी, ओ माय डियर मैटिल्डा, माइन वेयर फॉल्स। मैंने जो तुम्हें दिया था वो फॉल्स था। फॉल्स मीन्स नकली, इमिटेशन, पेस्ट। मैंने तुम्हें दिया था वो ओरिजिनल डायमंड नहीं थी। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 500 फ्रैंक्स लगता था उसको। ये कहकर उसने लेसन समाप्त किया। वो नकली था और दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, उसका वैल्यू कम से कम 500 फ्रैंक्स का ही था। तो उसके बदले में इतना कॉस्टली और डायमंड का नेकलेस खरीद के लाया। कितने दुख की बात है। ये कहकर वो लेसन समाप्त किया। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी टू read the lesson, try to understand the main points, objective type questions, main questions, 1 sentence answers, 30 words answers and 20 words answers. So for all these things you have to read the lesson as much as you can, then only you can answer the questions. Okay.